ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں کمرے میں کافی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سوچا کرتی تھی کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے اور اس کے اچھے اور برے نقصانات کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے میں ہر چیز کے یا ہر واقعے کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہی اگلا لائحہ عمل طے کیا کرتی تھی۔ اماں مجھے 2 بار کھانے کے لیے بلانے کے لیے آ چکی تھی، مگر میں نہیں جا رہی تھی۔ ویسے بھی آج میری طبیعت بوجھل تھی، اسی وجہ سے میں کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات کچھ عرصہ پہلے تک کچھ اچھے نہیں تھے، جبکہ اب ایک دم گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، جو مجھے کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی غربت کے مٹ جانے پر خوش نہیں تھی، مگر میں بے سکون بھی بہت تھی، کیونکہ شاید میں نے اتنا کھانا اور اتنی عیاشی والی زندگی پہلے جی نہیں تھی، اور اب ایک دم سے اتنا کچھ مل جانا مجھے ہضم بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں کسی سے سوال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابا کے ساتھ میری اتنی دوستی ہی نہیں تھی کہ میں ان سے کچھ بھی کہہ سکتی یا منوا سکتی، اور دوسری بات میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ان سے جا کر کوئی ایسا سوال بھی کر سکتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر کوئی جواب اس کے برعکس نکل آیا، جیسا میرا دماغ نہیں ہے یا جیسی میری فطرت نہیں ہے، تو شاید میں سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کے بعد اماں کمرے میں آئی اور مجھے کہا کہ اس گھر میں تم اور میں ہی رہتی ہیں، اور تم بھی کھانا کھانے سے انکار کر رہی ہو۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ پہلے میں نے اماں کو دیکھا۔ میں یہ سوال اماں سے کرنا چاہتی تھی، مگر پھر وہی بات کہ ہم لوگوں کے درمیان اتنی دوستی نہیں تھی، اس وجہ سے میں ان سے یہ بات کرنے کی جسارت نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس مجھے اپنی طبیعت اچھی محسوس نہیں ہو رہی، اس وجہ سے میں کھانا کھانے نہیں آئی۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لیں۔ جبکہ اماں نے فکر مندی سے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا جو کہ ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں بخار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ کاش انسان اپنے دل کے تمام اوہام کسی کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر بات کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں۔ کچھ باتیں، کچھ ڈر، کچھ خوف انسان چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے ان سے بس یہ کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے اور تھوڑا سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ تو انہوں نے مجھے زبردستی اٹھایا اور کہا کہ جلدی سے اپنا منہ ہاتھ دھو، اس کے بعد میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر انہوں نے جب ضد کی اور زبردستی کرنے لگی تو میں انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں جلدی سے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد اماں نے بھی برقع اوڑھ لیا تو میں نے حیرانی کم پریشانی زیادہ سے دیکھا اور کہا کہ آج سے پہلے آپ نے برقع کبھی نہیں پہنا، یہ آپ نے کب سے پہننا شروع کر دیا؟ میں نے ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا کہ کیا برقع لینا کوئی بری بات ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ لینا بری بات نہیں ہے، مگر آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا، اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں یوں باہر جایا کروں، اور ویسا بھی میرا کپڑے بدلنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں عبایا ہی پہن کر باہر چلی جاتی ہوں۔ گو کہ مجھے ان کی بات پر یقین تو بالکل نہیں آیا تھا، مگر میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اور ویسے بھی مجھے معلوم تھا
कि मैं जितनी भी जिद कर लेती, उन्होंने जो बात नहीं बतानी थी वो कभी भी ना बताती। इसलिए मैंने फिर यही जाहिर किया कि जैसे मुझे उनकी बात पर मुकम्मल यकीन आ गया है, ताकि वो मेरे सामने इत्मीनान से रहें। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ भी मैंने एक बात नोटिस की कि अम्मा काफ़ी मोहतात थी, और इस वजह से मेरा भी ध्यान बाकी चीज़ों से हटकर बस अम्मा पर और उनके हर अमल पर था। मैं चूंकि उनके साथ काफ़ी अरसे बाद बार जा रही थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। उसके बाद मुझे नहीं इल्म कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। बस मैंने इतना ज़रूर देखा था कि अम्मा बहुत परेशान हो गई थी। हम लोग क्लिनिक से वापस आकर रिक्शे पर बैठे तो अम्मा का नकाब सरक गया, और तभी एक औरत अम्मा को बगौर देख रही थी। मैंने भी उस औरत की जानिब देखा तो अम्मा ने भी नोट कर लिया, और उसको देखकर अम्मा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन भागने के अंदाज में फिर से बाजार में गुम हो गई। मैंने हैरानी से अम्मा को देखा और कहा कि आपको ऐसा क्या हुआ है? आप लोगों से क्यों छुपती फिर रही हैं? उन्होंने मुझे गुस्से से चुप रहने का इशारा किया तो मैंने गहरी सांस ली, मगर उनका खौफ मुझे खौफजदा तो नहीं कर रहा था, बल्कि परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर रोऊं, क्योंकि मुझे ये मशकूक हरकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद अम्मा बड़े मोहताद और चौकन्ना अंदाज में आगे पीछे देखती रही थी, और मैंने भी लबों को कुफ्ल लगा लिया था। घर आकर मैं बगैर कोई बहस के कमरे में आ गई, और तकरीबन 2 से 4 घंटों के बाद अम्मा भी कमरे में आईं तो मेरी सोचों का तसलसल टूटा। मैंने उनको देखा तो उनके हाथों में दवाइयाँ थीं, और मेरे पास बैठते हुए कहा कि तुम किस चीज़ की परेशानी ले रही हो? मैंने नासमझी से उनको देखा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम किसी टेंशन के ज़ेर असर हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि अम्मा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस कॉलेज का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ की टेंशन ना लिया करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो मुझे दवाई देकर कमरे से चली गई, और थोड़ी देर बाद अब्बा आए और उनके साथ वो घर से चली गई। मुझे तो यही कहकर गई थी कि वो शॉपिंग करने जाएंगी, जबकि मेरा दिल नहीं मानता था कि वो रोज़ाना ही खरीदारी के लिए जाती हैं। इंसान जितना चाहे अमीर हो जाए, मगर वो रोज़ खरीदारी के लिए नहीं जा सकता। कोई ना कोई बात ऐसी थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, मगर जिसका इल्म मुझे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ से वापस आने के बाद अम्मा 4-4 घंटे गुसल खाने में बंद रहती, और अक्सर ही मुझसे कहा करती कि मैं तुझे बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, जबकि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ऐसी कौन सी कुर्बानी दे रही हैं जिसके बारे में वो ऐलान नहीं करना चाहती, उसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत बार उनसे पूछा था, मगर कहती कि ये राज है और इसको राज ही रहना चाहिए। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान सी कमरे में बैठी हुई थी, और यही कुछ सोच रही थी कि पहले तो अब्बा का कारोबार नाम की कोई इरादा तक नहीं था, क्योंकि अब्बा एक जवारी थे और वो अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार चुके थे, और अपने घर की हर कीमती से कीमती चीज़ तो जुए में हार चुके थे, और सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी नौकरी भी नहीं की थी। तो अब जब अब्बा घर में बहुत पैसा भी लाने लगे और हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे, और उनके हाथ ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया था कि हमारे घर यूं हर चीज़ की रेल पेल हो गई थी। उससे पहले अम्मा और अब्बा के झगड़े ही देखे थे। ज़रा ज़रा सी बात पर वो ऐसा तमाशा लगाया करते थे कि मोहल्ला होंठों में उंगलियां दाब लिया करता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ाई किया करते थे।
और उसकी छोटी सी वजह यही थी कि अब्बा नौकरी नहीं करते थे और अम्मा नौकरी करना नहीं चाहती थी, और अगर कपड़े वगैरह सिलाई करके उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे तो अब्बा वो भी हथिया लिया करते थे। अगर वक्त को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाएं तो अम्मा और अब्बा की शादी 20 साल पहले हुई थी और वो दोनों आपस में रिश्तेदार थे। अब्बा की हरकत के बारे में पूरे खानदान को पहले से ही इल्म था और कोई भी उनको अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। तो फिर मेरी दादी अपने भाई यानी मेरे नाना के पास गई और उनके कदमों में अपना दुपट्टा रखते हुए कहा कि मेरा बेटा शादी की उम्र क्रॉस कर चुका है और कोई भी उसको अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, जबकि घर में उसकी भाभियां भी उसको खाना नहीं पूछती, और कल को मैं मर गई तो मेरा बेटा रुल जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए मुझे दे दो। चूंकि बहन रो रही थी तो नाना ने उनको तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सोचकर जवाब दूंगा, मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त जवाब चाहती हूं। अगर तुम हां कर दोगे तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मशकूर रहूंगी, लेकिन अगर तुम इनकार कर दोगे तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। दादी ने चूंकि नाना अबू पर काफी एहसान किए हुए थे और अब नाना अब्बा भी उनके एहसानात के बोझ तले दबे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद अपनी बीवी के पास गए। नानी ने जब ये सुना तो कहा कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन आपसे गुजारिश कर रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी को यूं पानी में नहीं बहा सकती। जबकि नाना अब्बू ने पुराने जमाने के बुजुर्गों की तरह उन पर वाज़ेहा कर दिया कि उस घर का सरबराह मैं हूं, सो जो फैसला मैं करूंगा वही काबिल कबूल होगा। जिस पर मेरी नानी ने डरते हुए कहा कि देखो, खानदान के सब लोग बहुत सियाने हैं, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसको नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि वो कभी भी नहीं सुधरेगा, जबकि नाना उनको इस बात का यकीन दिला रहे थे कि वो सुधर जाएगा, और दूसरी जानिब नानी अब्बा भी उनको यही यकीन दिला रही थी कि जब भी कोई औरत अपने बेटे की शादी इसलिए करती है कि उसकी बहू आकर उसके बेटे को सुधारेगी तो वो सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि बहुएं कभी भी बेटे को सुधार नहीं सकती। ये माँ का काम होता है, माँ तरबियत करती है और उसको संवारती है। जबकि नाना ने कहा कि मैं अपनी बहन को हाँ कहने जा रहा हूं क्योंकि मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता। ये वालिदैन भी बड़ी अजीब होते हैं, बहन भाई और रिश्ते बचाने के लिए अपनी औलाद कुर्बान करते हुए एक पल को भी नहीं सोचते। उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि उनकी औलाद बहुत हसास होती है, वो नहीं सह सकती। फिर जब उन्होंने नानी का सहारा लेने की बजाय अम्मा से खुद ही बात की तो वो भी शर्मो हया का पैकर थीं। दिल में इनकार होने के बावजूद, उस जवारी से नफरत करने के बावजूद, उन्होंने बाप का सर फख्र से बुलंद करने के लिए अपना सर हमेशा के लिए झुका दिया, जबकि नानी दुख से उन्हें देखती रह गई कि बहन की मोहब्बत में अंधे हुए शख्स ने अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया था, जो कि अंधा था। वो बहुत ज्यादा रोई थी। दिल चाह रहा था कि अपने शौहर के साथ बगावत करें और अपनी बेटी को लेकर यहां से दूर चली जाएं, मगर ऐसा करना भी कहाँ आसान होता है। लोग कहते हैं कि माएं बहादुर होती हैं, मगर कभी कभी माएं बहुत ज्यादा कमजोर भी पड़ जाती हैं, और ऐसा ही नानी अम्मा के केस में हुआ था। और फिर चंद महीनों बाद अम्मा की शादी हो गई। वो खुश तो बिल्कुल नहीं थी, मगर जब दुल्हन बनी हुई थी तो नानी ने उनको सीने से लगाकर नम आंखों और भीगी आवाज में कहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारे बाप ने फैसला कर लिया है और हमारे पास सिवाय सर झुकाने के
और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती हूं कहीं ना कहीं ये फैसला गलत है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार तुम मुझे गलत साबित कर दो। तो अम्मा ने नासमझी से कहते हुए उनको देखा कि अम्मा, मैं इस फैसले को कैसे गलत साबित कर दूं? तो उन्होंने कहा, बाप के इस फैसले को गलत साबित नहीं करना, बल्कि मेरे इस फैसले को गलत साबित करना है कि तुम्हारे बाप का फैसला गलत है। तो उन्होंने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा कि मुझे सच में आपकी बात समझ नहीं आ रही। दरअसल टेंशन की वजह से उनका दिमाग माऊफ हो रहा था, जिस पर उन्होंने वजाहत दी और कहा, मेरी बेटी, मैं ये कहना चाह रही हूं कि तुम उस इंसान को वाकई सुधार लेना, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी, क्योंकि एक बेबस माँ दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपनी माँ के हाथ चूमते हुए कहा कि मुझे यकीन है मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगी। उनकी माँ ने माथा चूमा और कहा कि कभी भी दिल में कोई गलत ख्याल मत लाना, तुम उसकी ताबेदार बन के रहना, देखना एक दिन वो तुम्हारा ताबेदार बन जाएगा। अम्मा अपनी अम्मा से ये तो कहना चाहती थी कि आपने भी तो सारी जिंदगी अब्बा की ताबेदारी और फर्मा बरदारी में सर झुकाकर उनका हर फैसला मानकर गुजारी है। उन्होंने अगर कहा है कि कौवा सफ़ेद है तो आपने कहा हाँ सफ़ेद है। उन्होंने अगर दिन को रात और रात को दिन कहा है तो आपने बगैर किसी एतराज़ के इस बात को भी तस्लीम किया है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि शौहर की ताबेदारी करने से वो आपका ताबे हो जाता है? ये बस हमारी गलतफहमी होती है और कुछ नहीं। मगर उन्होंने मुस्कुराकर उनको यकीन दिलाया कि वो वहां पर बहुत खुश रहेंगी। उसके बाद रुखसती हो गई और चंद दिनों बाद जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। शादी के 2-3 माह बाद अब्बा ने हर उल्टा सीधा काम करने से खुद को बाज रखा था, जबकि शायद ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए। एक दिन अम्मा ने उनको कहीं से पैसे चुराते हुए देख लिया और इल्म हुआ कि ये पैसे जुए में शर्त लगाकर हारना चाह रहे थे। तो उस पर उनका गुस्से से पारा हाई हो गया। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने इस चीज़ की भिनक अम्मा को नहीं पड़ने दी थी, मगर जिस रोज़ अम्मा को शक हुआ तो उन्होंने भी खुलकर इस खेल को खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको पता था कि पर्दा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी बीवी को इल्म हो चुका है। अम्मा ने उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब्बा के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और उसका खमियाजा भुगतना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। अम्मा ने उनको प्यार से समझाने की कोशिश की कि शायद वो इसी चीज़ का मान रख लें, मगर ये कोई ऐसी बुरी चीज़ थी कि वो हर चीज़ को भूल बैठे थे। हर रिश्ते की मोहब्बत जैसे उनके दिल से निकल चुकी थी। उसके बाद अम्मा ने उनको गुस्से से भी समझाया और ये भी धमकी दी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मगर उनके दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं हो रहा था। यूं जैसे अम्मा के होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जब दादी को शिकायत की तो उन्होंने हार माने वाले अंदाज में कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसकी शादी क्यों करवाती। अम्मा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो अम्मा का हर हाल में साथ देंगी। उस पर उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा ही कसूर है, जब तुमसे एक शौहर तक काबू नहीं हो रहा। जबकि अम्मा को दुख से देखती रह गई कि अपने बेटे की और अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि सारा इल्ज़ाम अम्मा पर ही डाल रही थी कि वो उनके बेटे को सुधार नहीं सकी थी। चंद महीने गुजर गए, मगर अब्बा सब कुछ जुए में हार गए और अम्मा यहाँ अपनी हिम्मत हार रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वापस जाकर अपने वालिदैन को दुख दें, क्योंकि उनको अच्छी तरह इल्म था कि वालिदैन अपनी तरफ से अच्छा फैसला ही करते हैं और वो अपनी माँ को तो ख़ास तौर पर अपनी जानिब से कोई भी दुख नहीं देना चाहती थी।
اس لیے انہوں نے ہر ستم کو دل پر سہنا شروع کر دیا، اور دادی کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت بدل چکا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا سدھرنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ اس لیے انہوں نے اماں کو کاہل اور اناڑی کہہ دیا، جس پر اماں نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو سدھار نہیں سکتی تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں تو ایک پرائی عورت ہوں جو 3 الفاظ سے اس کے ساتھ جڑی ہوں۔ وہ چاہے گا تو کل اسی نشے میں دھت مجھے اس گھر سے نکال دے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ آپ اپنی کوتاہیوں کو میرے سر پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی ایسا کرنے دوں گی۔ آپ نے فقط اپنے بیٹے کی خاطر میری زندگی برباد کی ہے، جس پر میری دادی ہتھے سے اکڑ گئیں اور کہا کہ میں نے تمہارے باپ سے جا کر تمہارا رشتہ مانگا تھا اور اس نے تمہاری شادی کی ہے۔ اس میں میرا کہاں قصور ہے کہ میں تمہاری زندگی برباد کر رہی ہوں؟ اماں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے پیروں میں اپنا دوپٹہ نہ رکھا ہوتا تو وہ اتنا بے وقوف شخص نہیں تھا کہ اپنی بیٹی آپ کے ایک جواری بیٹے کو دے دیتا، اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کو دادی کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بوڑھی عورت بیٹے کو روز سمجھایا کرتی تھی، مگر بیٹا ہی کوئی انتہائی پتھر دل اور بد نصیب تھا کہ اپنی ماں کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں گئیں اور ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو دادی نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا چلا کب ان کاموں میں پڑ گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مگر تم خود بتاؤ بیٹا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ اس کے دوست کیسے ہیں؟ یہ تو بس جب گھر کی چیزیں غائب ہونے لگیں مجھے تب علم ہوا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، تب مجھے کسی نے کہا کہ اس کی شادی کروا دو، جب بیوی آئے گی تو دیکھنا یہ کیسے سدھر جائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں تو ساری امیدیں تم سے لگا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا تم خاندان کی سب سے اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ اس پر اماں نے کہا کہ میں اپنی ہر کوشش کر چکی ہوں، مگر یہ شخص سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ آپ ماؤں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو بیویاں آ کر سدھار لیں گی۔ وہ تو کوئی 100 میں سے ایک خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جس کا شوہر اسے اس قابل سمجھتا ہے، لیکن جب کسی کا دل پتھر کا ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ خود سوچیں، جو اپنی ماں کی بات نہیں سنتا وہ کسی پرائی عورت کو کیا اہمیت دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس سے ایک بار بات کروں گی اور تم پریشان مت ہو۔ اس طرح جب ابا آئے اور دادی نے ان سے بات کی تو وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وہ جوئے میں بہت کچھ ہار کر آ رہے تھے اور اس وجہ سے بہت غصے میں تھے۔ دادی سے بدتمیزی کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے اور وہ بے بسی سے وہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ چند مہینوں بعد اماں کی گود ہری ہو گئی، لیکن ابا کے دماغ میں اتنی بھی سوچ نہیں آئی تھی کہ ان کی بیٹی ہو چکی ہے اور اب ان کو خود کو سدھارنے کا کام کر لینا چاہیے۔ دادی بھی ان کو سمجھایا کرتی تھی، مگر ان کے دل پر شاید مہر لگ چکی تھی کہ کسی کی بھی کوئی بات ان کو اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ نہ ہی کسی کی بات سننے کو تیار تھے۔ ان کو سمجھاتے بجھاتے دادی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 4 دن بعد ابا نے پھر سے وہی روٹین اپنا لی۔ اب تو اماں باقاعدہ بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو رونے لگی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی، مگر جب گود میں مجھے دیکھتی تو ان کو وہیں رکنا پڑ جاتا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ باپ کے سائے سے محروم رہ جانے کی وجہ سے میری ذات میں کہیں محرومیاں نہ آ جائیں۔ اس لیے انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کر لیا۔ انہوں نے ہر زخم اپنے سینے پر کھا لیا تھا،
और कोई भी उनका जख्म और दर्द बांटने के लिए नहीं आया था। वो वालिदैन भी नहीं जिन्होंने रिश्ता तय किया था। इसलिए कहा जाता है कि अपनी बेटियों की शादी करने से पहले इंसान को तलाश करना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा था और उन्होंने इतनी मुश्किलों से सिलाई कढ़ाई सीखी और फिर उसी से घर का गुजर बसर करने की कोशिशें करने लगी थी और कुछ पैसे छुपा कर रखती या साथ ही साथ घर के लिए कोई खाना पीना और राशन ले आया करती थी। और उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। उनको घर की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी, तो शायद अब्बा को जिम्मेदारी का एहसास हो जाता। जब फाके ही फाके नसीब होते तो वो ऐसा ना करते। वो शायद ये बुरे काम छोड़ देते और पेट भरने की खातिर ही सही मगर इन सब चीज़ों से दूर हो जाते। दरवाजे पर होते हुए खटके ने मुझे माजी से फिर हाल में धकेला। मैंने महसूस किया कि मेरे गाल नम हो रहे थे और आंखें भी जलन की वजह से सुर्ख हो रही थी और उनसे पानी बह रहा था, या वो आंसू थे, मैं समझ नहीं पाई थी। ये यकीनन अब्बा और अम्मा दोनों आए थे। मुझे नहीं पता था कि अब्बा अम्मा को कहाँ लेकर जाते थे, लेकिन अम्मा अक्सर ही मुझसे ये कहा करती थी कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम्हारी कहीं जल्दी से शादी हो जाए। जिस पर मैं अम्मा से कहा करती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। आपका हाल देकर मेरे दिल से शादी की हसरत निकल चुकी है। तो मुझे समझाया करती थी और कहती थी कि देखना, तुम्हारी शादी मैं बहुत अच्छी जगह पर करूंगी। और मुझे ऐसी कोई फहमी लाहक भी नहीं थी, मगर मैं उनकी खातिर बस सर को जुम्बिश दे दिया करती थी कि कम से कम मेरी जानिब से तो वो थोड़ा मुतमईन हो जाया करें। अम्मा रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मैं अब्बा से कहा करती कि अम्मा को दवाई ला दें, तो यूं ही हकीमों की दवाइयाँ ले आया करते थे और मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा आया करता था। मैं उस रात उनसे लड़ाई भी करने लगी कि जब अम्मा की तबीयत ख़राब है तो उनको क्यों शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, और ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ लड़की, मैं ऐसे शॉपिंग करवाने नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। जिस पर उन्होंने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा कि तुम कौन होती हो मुझ पर शक करने वाली? मैं अपनी बीवी का कोई दुश्मन नहीं हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन अगर अब मैं सुधर गया हूं, कारोबार करने लगा हूं, तो तुम्हें यह भी खटक रहा है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया और अम्मा ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद यूं ही वक्त गुजरने लगा और अचानक ही अम्मा का इंतकाल हो गया और ये मेरे और अब्बा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब्बा के लिए तो शायद कोई और वजह होगी, मगर मैंने अपनी दुनिया में एक ही रिश्ता था और उसको खो दिया था, इसलिए मेरा सदमा बहुत बड़ा था। एक दिन अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी अम्मा को मैं शॉपिंग कराया करता था, तो चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाऊं। मगर मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब्बा ने कहा था कि मेरा जाना ज़रूरी है, तुम घर पर नहीं रह सकती, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं डरते हुए वहां चली गई। मैंने अब्बा से तो कह दिया था कि मैं तैयार होकर आ रही हूं, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मा ने मुझे नसीहत की थी कि अगर कभी मैं जिंदा रहूं या न रहूं और तुम्हारा बाप तुम्हें कहीं लेकर जाने लगे तो तुम वहां जाने के लिए हामी नहीं भरोगी, बल्कि तुम उससे बेहतर है कि कहीं भाग जाना। और मुझे उस वक्त अम्मा की कमी शदीद महसूस हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने रोते हुए अम्मा को पुकारा और कहा कि मुझे किस कुएं में तन्हा छोड़कर चली गई हैं। अम्मा जल्दी से लौटा, क्योंकि मैं यहां खुद को नहीं बचा पाऊंगी।
मैं दुनिया से क्या शिकवा करूंगी? यहां तो मेरा बाप ही शायद मुझे कुछ और करने को मजबूर कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने आर या पार लगने का फैसला किया और अब्बा से कहा कि मैं 5 मिनट में आ रही हूं। 5 मिनट में मैं बुर्का ओढ़कर अब्बा के साथ गई तो अचानक उनके पैरों में गिर गई, क्योंकि वो मुझे मज़ार में ले गए थे और मैं जान गई थी कि यहां पता नहीं क्या होता होगा। तो अब्बा ने मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, मैं जैसा कहूँगा तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। और जो बात अब्बा ने कही वो तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकालने को काफ़ी थी। अब्बा ने कहा कि मेरा नाम रिजवाना है और मैं कराची के नवाही इलाके में रहती हूँ। जैसा कि मेरी कहानी से आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरे अब्बा और अम्मा ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी और उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारते हुए मैं एक डरी सहमी सी बच्ची थी जिसने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी इर्द गिर्द मार कुटाई और लड़ाई झगड़ा ही देखा था। इस वजह से मेरे अंदर एतमाद की बहुत कमी थी और मैं तालीम भी सिर्फ 12 जमातें पढ़ सकी थी और अम्मा और अब्बा की लड़ाइयाँ बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर अचानक उन दोनों के दरमियान सुलह हो गई और मेरी ज़िंदगी के 18 साल बाद होने वाली सुलह के मुतालिक मैं बिल्कुल भी पुरसकून नहीं थी, क्योंकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। उसके बाद घर में पैसे की रेल पेल होने लगी और मुझे ये भी घुटने लगा था कि मैंने अम्मा से 2-4 बार पूछा तो उन्होंने टाल दिया, इसलिए मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, बस खामोश हो गई। लेकिन जब अम्मा को हर रोज़ रात शॉपिंग का बहाना करके ले जाने लगे तो ये मुझे खटकने लगा था। मुझे नहीं इल्म था और अम्मा भी बताने को तैयार नहीं थी, मगर वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी और फिर अचानक उनकी वफ़ात हो गई। और उसके बाद जब अब्बा ने कहा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं मज़ार के बाहर अब्बा के कदमों में बैठी हुई थी तो अब्बा ने मुझे कहा कि इधर बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं डरते हुए वहाँ पर बैठ गई तो इतनी देर में एक औरत वहाँ पर आ गई और अब्बा से कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं आई, जिस पर अब्बा ने कहा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लगी और इर्द गिर्द काफ़ी औरतें इकट्ठी हो गईं और रोने लगीं और पता नहीं क्या कहने लगीं कि उनकी क्या लगती फौत हो गई। बावजूद कोशिश के मैं नहीं समझ सकी थी तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अम्मा की याद तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और रोने की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अब्बा मुझे वहाँ से ले आए। लेकिन मुझे इतना इल्म ज़रूर हो गया था कि अब्बा मुझे किसी भी गलत काम के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। अब्बा मेरे लिए दवाई ला रहे थे और कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है, लेकिन अब घर का सर्कट चलाने के लिए हम दोनों को हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे मज़ार पर जाकर क्या करना होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि जब तू मेरे साथ वहाँ चलोगी तो वहाँ जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा। घर पर वैसे भी अब अम्मा के बाद मुझे वहशत होने लगी थी, इसलिए मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ते हुए अब्बा से कहा कि ठीक है, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। तबीयत मेरी चूंकि इतनी ठीक नहीं थी, मगर मैंने वहाँ पर जाने और किस्मत आजमाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मुझे इतना अच्छी तरह याद था कि अब ये जो भी काम है मुझसे करवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि अब्बा को अपने पैसे और अपना जुआ खेलना अजीज था। उनके लिए कोई दूसरा रिश्ता अब मुकाम ही नहीं रखता था। उसके बाद अगले रोज़ मैं तैयार होकर अब्बा के साथ वहाँ पर चली गई और ख़ुद को आसाबी तौर पर मजबूत रखने की भरपूर कोशिश करने लगी। अब्बा ने मुझे एक दरख्त के नीचे बैठने को कहा और मुझे वहाँ आए किसी देग वाले से खाना लेकर दिया और खाने को कहते हुए खुद वहाँ से चले गए। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही और आराम आराम से खाती रही।
मगर अब्बा नहीं आए और अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उसके बाद मैं घूमते घूमते अब्बा को ढूंढने लगी। तभी मुझे सामने से अब्बा आते हुए दिखाई दिए और मुझ पर काफ़ी बरहम हो गए और कहा कि तुम वहाँ से क्यों उठी थी? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब आप काफ़ी देर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो वहाँ वापस मुझे कमरे की तरफ लेकर गए। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर वहाँ पहुंचकर एक बहुत बड़ी उम्र की एक चोगे में मलबूस औरत बैठी हुई थी। उसने मुझे काले रंग का लिबास दिया और कुछ तस्बीहात और अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें दी और कहा कि तुम उनको हाथों और गले में पहन लो और तुम्हें उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर अब्बा ने मुझे सख्ती से उनकी बात मानने को कह दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तब मैं वहां पर मौजूद औरतों जैसी दिखने लगी थी। उसके बाद उसने मुझे प्याला देकर बाहर बिठा दिया। मुझे बहुत वहशत हो रही थी, मगर अब्बा भी सामने मुझे देख रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि लोग आते और उस प्याले में पैसे डालकर चले जाते और मुझे तर्स खाती निगाहों से देख लेते। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। मुझे अम्मा की शिद्दत से याद आने लगी, यानी अब्बा अम्मा से ये काम करवाते थे। अपने जुआ खेलने की हवस को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले बीवी को मार दिया और अब बेटी को भी दांव पर लगा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और इस रोने की वजह से लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे ज़्यादा पैसे देकर जा रहे थे। और अब्बा का तो जैसे खुशी से अपना भंगड़ा पता नहीं कैसे रोका हुआ था। थोड़ा सा वक्त गुजरा, यानी यही कोई 2-3 माह, और मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं उनसे बगावत के मुतालिक सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी और रोज़ वहाँ बैठना मेरे लिए वबाले जान जैसा था। दिल करता था कभी भाग जाऊं, लेकिन पहले पहल तो अब्बा वहाँ ही मौजूद रहा करते थे। मगर जब उनका मुझ पर एतमाद बहाल हो गया तो वो थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाया करते थे। मुझे नहीं इल्म कि वो कहाँ जाया करते थे, लेकिन अब वो मुझ पर इतना पहरा नहीं दिया करते थे। तभी एक औरत मेरे पास आकर बैठी और मुझे बगौर देखने लगी। कपड़ों से तो मुझे अच्छे घर की मालूम हो रही थी। उसने कुछ पैसे मेरे प्याले में रखे और उसकी एक्सरे करती नज़रों से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वैसे भी मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरएतमाद लड़की थी ही नहीं, और जो ज़रा एतमाद था वो यहाँ आने की वजह से ख़त्म होकर रह गया था। फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने आगे पीछे देखा कि कहीं अब्बा तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अब्बा ने मुझे सख्ती से किसी के साथ भी बात करने से मना किया था। दूर दूर तक अब्बा का नामो निशान नहीं था, तो मैंने सर को हाँ में हिलाते हुए उनको इजाज़त दे दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आंखों से मालूम होता है कि तुम बहुत अजियत में हो। क्या तुम अपने दुख मेरे साथ बांट सकती हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि मैं गैरों के साथ अपने दुख नहीं बांटती। तो उन्होंने कहा कि कभी आपको अपने ही ऐसी इज्जतें देते हैं कि आपको दुख भी गैरों से ही बांटने पड़ते हैं, क्योंकि आपने कभी अपने नहीं समझते। ये बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जख्मों को छेड़ दिया हो और उन पर नमक डाल दिया हो। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हारा राज किसी को भी नहीं दूंगी, बल्कि हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ इस अंदाज में मदद करूं कि तुम्हारी इन सब से जान छूट जाए। तो मैंने उनको सब कुछ बताना चाहा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे अब्बा आने वाले होंगे, मैं आपको ये सब नहीं बता सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगी, और जैसे ही तुम्हारे अब्बा गायब हो जाएं तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं वहां सामने बैठी होंगी, मैं आ जाऊंगी और तुम सारी बात मुझे बता देना। अब मैं कल का बेचैनी से इंतजार करने लगी थी, क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी।
भीख मांगना कौन चाहता है? मैं इस काम से जान छुड़ाना चाहती थी और उसके लिए मैं एक बार कम से कम खतरा मोल लेना चाहती थी। उससे यह था कि या तो मैं आर हो जाती या पार हो जाती। जो भी था मैं इसको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेती। अगले दिन जब मैं वहां पर गई और उसी दरख्त के नीचे बैठ गई तो अब्बा जब वहां से गए तो मैंने उनको इशारा किया और फिर मैंने उनको तमाम बातें बता दी कि कैसे अब्बा पहले ये काम अम्मा से करवा रहे थे और अब ज़बरदस्ती मुझसे इस काम के लिए मजबूर किया हुआ था। मेरी तमाम बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यूं समझो कि अल्लाह ने तुम्हारी गैबी मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा है। जिस पर मैंने हैरानी से उनको देखा और कहा कि ये क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं भी कभी मज़ार पर यूं नहीं आती। उस दिन मेरा बेटा गिर गया था तो किसी ने मुझे कहा था कि इस मज़ार पर जाओ, तो मैं उस दिन थक कर यहाँ आकर बैठी थी तो मुझे तुम मिल गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल आऊँगी तो मेरा इंतज़ार करना। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली थी, लेकिन मैंने उनका यकीन कर लिया था क्योंकि उनकी आंखें उनकी बात की गवाही दे रही थी कि वो बिल्कुल सच बोल रही थी। मैं अगले दिन का शिद्दत से इंतज़ार करने लगी और मज़ार के अंदर जाकर देखा वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे यूं लगा कि जैसे वो मेरी मदद करने के इरादे से फिर गई होंगी। वैसे भी ये करना बहुत बड़े खतरे के मुतरादिफ था। फिर जैसे ही अब्बा गए तो वो पता नहीं कहाँ से निकलकर मेरे पास आ गई। मैं उनको देखकर बेसाख्तगी से खुशी का इजहार किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी रात सोचकर एक फ़ैसला किया है और अब उसके लिए तुम्हें ज़रा सी हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैंने ना समझी से उनको देखा और कहा कि किस किस्म की हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो उसे कम से कम एक बार ख़तरा मोल लेना पड़ता है और तुम्हें भी एक बार ऐसा करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा डरते हुए उन्हें देखा कि क्या ज़्यादा ख़तरे वाला काम है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है अल्लाह ताला भी कहता है कि जुल्म करने वाला इतना जालिम नहीं होता जितना वो शख्स होता है जो बग़ैर कुछ कहे जुल्म सहता रहता है। इसलिए हम तुम्हें हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे डरा रही हैं, पहले आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने आगे पीछे देखते हुए राजदाना अंदाज में कहा कि बगावत। मैंने चौंक कर बेयकीनी से उनको देखा और कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे किस तरह बगावत करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत मासूम हो और मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे बाप ने पहले तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया और अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। उस पर मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, अगर कुछ नया है तो उसके मुत्तलिक बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का भी कसूर है जो पुलिस स्टेशन तक नहीं गई। तो मैंने कहा कि कोई बीवी अपने शौहर के लिए नहीं जा सकती, वो भी जब एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हो, क्योंकि उसके लिए यही होता है कि शौहर घर में मौजूद है तो वो मुआशरे के दरिंदों से बची रहती है। इस बार उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि औरत को अब खुद मजबूत होना होगा। तो फौरन मैंने उनकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा और कहा कि ये इतना आसान तो नहीं। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम उठाना मुश्किल लगता है, उसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं। तुम बताओ, क्या तुम मेरा साथ देने को तैयार हो? मैंने थोड़ी देर खामोशी से उनको देखा तो उन्होंने अब्रू उचकाकर फिर से मेरी राय मांगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि आप बताएं कि पहला कदम क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां से भागना होगा। तो मैंने डरते हुए उन्हें देखा और कहा कि मैं यहां से कैसे भाग सकती हूं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा बाप जाएगा तो तुम भी यहां से बाहर निकल जाओगी। तो मैंने कहा आपको पता है यहां बहुत से लोग मुझ पर नजर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं उस टाइम कोई ना कोई अफरा तफरी फैला दूंगी तो तुम फौरन बाहर निकल जाना और सफ़ेद रंग की गाड़ी में बैठ जाना। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी।
میں نے ان سے کہا تو میں اپنے ابا کے متعلق کیا سوچوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے باپ کو جیل میں کرا دوں، لیکن چونکہ وہ تمہارا باپ ہے میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب تم یہاں بیٹھ کر سوچ لو کہ تمہیں اپنے باپ کے لیے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے اور اس کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھنا ہے یا اپنی بھی زندگی سنوارنی ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس کے بعد میں نے ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم کل اس کام کو سر انجام دیں گے اور تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ اگر تم پیچھے ہٹ گئی تو یاد رکھنا دوبارہ تمہاری طرف کوئی مدد نہیں آئے گی۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس رات میں بہت زیادہ بے چین رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس وجہ سے میں مطمئن تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ اور اگلے دن میں گئی۔ مجھے نہیں علم کہ میں اتنا ڈر کیوں رہی تھی۔ میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں پھر اسی حلیے میں وہاں پر بیٹھ گئی اور ابا کے جانے کے بعد اچانک سب لوگ ایک طرف بھاگنے لگے تھے۔ علم ہوا کہ وہاں کوئی عورت بری طرح بے ہوش ہو کر گری ہے۔ میں بھی ادھر جانے لگی تبھی مجھے وہ سامنے دکھائی دی اور اس نے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو میں بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی اور سامنے کھڑی ایک سفید کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی 2 منٹ بعد وہ باہر نکلتی ہوئی آئی اور گاڑی میں بیٹھی۔ تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کے بعد گاڑی ایک گھر کے باہر رکی تو اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی انگریزی میں جملہ بولا، شاید اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے گھر میں آنے کو کہا۔ گھر کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن کافی اچھا گھر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے اور یہاں پر وہ اور اس کا بیٹا رہتے ہیں اور میں بھی یہاں پر رہوں گی۔ اس نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا کہ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، جا کر فریش ہو جاؤ۔ جب میں فریش ہو چکی تو اس نے مجھے باہر آنے کا بلاوا بھیجا۔ مجھے کہا کہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو تم پوچھ سکتی ہو۔ میں نے کہا بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری مدد کیوں کی۔ تو اس نے کہا کہ اس رات میرے بیٹے کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے کسی کی مدد کرنے کی حامی بھرنی چاہیے اور کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس کے بعد صدقہ کرنا چاہیے تو شاید مصیبت ٹل جائے، کیونکہ میرے بیٹے کے کومے میں جانے کے بہت چانسز تھے۔ تبھی تم میرے سامنے آئی اور میں نے وہ سب کچھ پوچھ لیا اور پھر میں نے تمہاری مدد سچے دل سے کی ہے۔ پتہ ہے جس روز میں نے تمہاری مدد کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی، میرا بیٹا اسی دن ہوش میں آ گیا اور اب ماشاءاللہ سے وہ تھوڑے ہی دنوں میں صحت مند ہو کر گھر آ جائے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم اب یہاں پر رہو گی، تمہارے متعلق باقی فیصلے تم کرنے میں بااختیار ہو، لیکن ایک فیصلہ میں کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لینا۔ میں نے حیرانی اور بے یقینی سے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن اب جب تم فریش ہو کر آئی ہو تو تم اتنی پیاری ہو کہ میں نے تمہارے جیسی ہی بہو اپنے بیٹے کے لیے سوچی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ ماضی کا کوئی بھی اثر اپنے حال پر نہ پڑنے دینا، تم دیکھنا تم کتنی خوش رہو گی۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اب آپ بتائیں کیا میرا وہاں سے ابا کو بتائے بغیر نکل آنا ٹھیک تھا؟ اور ان کے بیٹے سے شادی کرنے کا میرا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔